اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ عدالتوں میں ہوتا کیا ہے. اور یہ عدالتیں جو ہیں یہ چیف جسٹس پاکستان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہاں پر انصاف مہیا ہو. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری عدالتیں جو سو موٹو نوٹس یعنی خود کسی بات کا نوٹس لے سکتی ہیں وہ ہر کام کا نوٹس لیتی ہیں سوائے یہ دیکھنے کے کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. یہ بدقسمتی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پورا ملک پریشان ہے. میڈیا کی رپورٹنگ پچھلے کئی ہفتوں سے اسی بات پر چل رہی ہے. ملک کے معاملات ایک طرف رہ گئے ہیں, حکومتی معاملات ایک طرف ہیں, جو ملک کی عوام کی پریشانیاں وہ ایک طرف رہ گئی ہیں. ہر شخص سپریم کورٹ کو دیکھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گا, کیسے کرے گا, بینچ کیا ہوگا. آج حالت یہ ہے کہ آپ سڑک پہ چلے جائیں, کسی آدمی سے پوچھیں, وہ آپ کو ججز کے نام بھی بتائے گا اور یہ بھی بتائے گا کہ اس بینچ سے فیصلہ کیا آئے گا. یہ بدقسمتی ہے. آج ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے اور بدستور متاثر ہوتی جا رہی ہے. اس کا ایک بڑا آسان حل تھا. ہم بالکل عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, لیکن جب عدالت کی ساکھ متاثر ہوتی ہے تو پورے نظام کی ساکھ متاثر ہوتی ہے. اس کا بڑا ایک آسان حل تھا کہ آپ فل کورٹ بنا دیتے, جو فیصلہ وہاں سے آتا اس کو انگلی نہ اٹھا سکتا. یہ معاملات جو ہیں یہ صرف یہاں پر ختم نہیں ہوئے بدقسمتی سے. اب سپریم کورٹ نے ایک ایسا قانون جو پارلیمان نے پاس کیا, صدر صاحب کے پاس گیا, انہوں نے اس پر اسینٹ نہیں دی, یعنی انہوں نے اس کو سائن نہیں کیا. واپس پارلیمان میں آیا, جوائنٹ سیٹنگ میں پاس ہوا اور ابھی 10 دن کا مہلت ہوتی ہے صدر صاحب کو کہ اس میں دستخط کر دیں. انہوں نے دستخط نہیں کیے. 10 دن پورے ہوں گے تو ملک کا قانون بن جائے گا. لیکن سپریم کورٹ نے قانون بننے سے پہلے ہی, یہ ایک بڑا انوکھا واقعہ ہے کہ قانون بننے سے پہلے ہی کہا کہ جی یہ قانون کا عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہوگا. اس بات کی تاریخ جو ہے میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی بھی عدالت سے آپ کو ملے گی. قانون پہ عدالتیں تشریح کر سکتی ہیں, اس کے بارے میں خیالات کا اظہار کر سکتی ہیں, لیکن قانون بنانا یہ آئینی طور پر پارلیمان کا کام ہے, عوام کے منتخب نمائندوں کا کام ہے. اگر عدالتیں قانون اسٹرائک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں تو پھر ملک کے اندر کیا رہ جائے گا. تو آج یہ لمحہ فکری ہے سب کے لیے, اور آج ملک کی سب سے بڑی ضرورت بھی یہی ہے کہ ہر ادارہ اپنے ڈومین کے اندر رہ کر, اپنے اختیارات کے اندر رہ کر کام کرے. میں نے کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات کی ہے ٹی وی پر, سوال کے جواب میں خود کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن نیب کا جو قانون ہے, میں جب پرائم منسٹر تھا تو اس میں تمام جماعتوں نے مل کر ایک کمیٹی بنائی تھی جو اس میں ترمیم کرنا چاہتی تھی. مجھے پاکستان کی اعلیٰ ترین جو جوڈیشل شخصیت تھی ان کی طرف سے پیغام آیا کہ اگر آپ نے یہ قانون بدلا, دن میں بدلیں گے تو رات کو اسٹرائک ڈاؤن کریں گے, رات کو بدلیں گے تو اگلی صبح اسٹرائک ڈاؤن کریں گے. تو جب یہ معاملات ہو جائیں, جب اداروں کے درمیان تعلقات یہ رہ جائیں, جب عدالتیں ہی اپنی من مانی شروع کر دیں کہ کون سا آئین, کون سا قانون لاگو ہوگا اور کون سا نہیں ہوگا, تو پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے, پھر انصاف ملک میں نہیں رہتا. آج سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے, عدالتوں کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی, کہ یہ ملک کے اندر جو مسئلہ پیدا ہوا ہے جہاں پوری قوم آج تماشائی بنی ہے, اس کا بیٹھ کر حل تلاش کریں. یہ فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے, ان فیصلوں کا بڑا گہرا اثر ملک پر پڑتا ہے. آج جب ملک میں انتشار کی کیفیت ہوگی, اس کا اثر ملک کی معیشت پر پڑتا ہے, اس کا اثر ملک کے ہر نظام پر پڑتا ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے, اور آج چیف جسٹس صاحب کو, ملک کے وزیر اعظم صاحب کو تھوڑا اپنے معاملات سے ہٹ کر اس معاملے کو طے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں یہ انتشار کی جو کیفیت ہے یہ ختم ہو.
आपने चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी की बात की, आपके ख्याल में मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे? दूसरा ये इस वक्त जो एक एक करके कर रहे हैं। चले इसी जी, का जवाब दें। देखिए जो आपने बात की है कि जिम्मेदारी पूरी कर रहे या नहीं कर रहे, ये तारीख फैसला करेगी या पाकिस्तान के अवाम करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, हमें उनसे तवक्को है कि आइन और कानून के मुताबिक जो उनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करेंगे। उनका एक रिकॉर्ड है और हम उनसे तवक्को रखते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन ये जो इबहम पैदा हो गया है बेंचेस के बारे में, ये बात दुरुस्त नहीं है। अच्छा, ये जो अदलिया और मुकन्ना के दरमियान एक चपकलिश चल रही है, कशमकश चल रही है, इसका नतीजा क्या आएगा? पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा रिजल्ट आएगा? मैंने अभी आपको बताया कि जब भी ये कशमकश होती है, ये एक कोई अनोखी बात नहीं है इसकी कशमकश, लेकिन ये सब सेटल्ड बातें हैं कि कानून कौन बनाएगा, कानून की तशरीह कौन करेगा। अब उसमें अगर अदालतें स्ट्राइक डाउन करना शुरू कर दें, और ख़ास तौर पर वो कानून जो अभी कानून बना नहीं है, यानी ये आप ये समझें कि कोई शख्स अगर एक पिस्तौल ख़रीद ले तो आप उसको कत्ल की सज़ा दे दें कि ये शायद पिस्तौल लेकर कल कत्ल कर देता, तो आप पहले ही सज़ा दे दें उसे, कत्ल की सज़ा इसको दे देते हैं। ये बातें कुछ तारीख कबूल नहीं करेगी और ना ही कानून का निज़ाम इस बात को कबूल करता है। सर, माजी में जो कवानीन में तब्दीली की गई थी सियासी जमातों की जानिब से, सिर्फ अपने मफादात के लिए चेंज किए थे। अब जो आप बदलाव लाना चाहते हैं, कानून में तरमीम लाना चाह रहे हैं, तो ये भी अपने मफादात के लिए, ये बेहतर नहीं होगा कि इलेक्शन करवा दीजिए, इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट बनती है वो अगर कवानीन में तरमीम करती है और उसमें आप सपोर्ट करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा? देखिए, कानून पे तनकीद कर लें ना। इस कानून, ये वाहिद कानून जो मैंने देखा है, इसमें कोई आदमी तनकीद नहीं करता। कानून क्या है? कानून क्या है कि जब आप सो मोटो नोटिस किसी बात का इख्तियार लेंगे तो मन मानी के बेंच नहीं बनाएंगे। उस पर एक कमेटी बनी है जो बेंच बनाएगी और फिर अपील का हक दिया गया है। ये दुनिया में किसी इंसाफ के निज़ाम में नहीं है कि आप अपील का हक ना दें। ये आइनी आपका हक है पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर पर जब सो मोटो नोटिस इख्तियारात लेकर कोई फ़ैसले किए जाएं और फिर अपील का हक ना दिया जाए, तो ये बात नहीं चलती। जहाँ तक इलेक्शन की बात आपने की है, इलेक्शन का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन का ताल्लुक़ पैदा किया गया है। इलेक्शन आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, वो ज़िम्मेदारी पूरी करे। अगर हुकूमत या कोई और इदारा उनसे तामुल नहीं करता तो वो अपनी रिपोर्ट में लिख देंगे, उस पर जो कार्रवाई होनी है वो हो जाएगी। इसको तमाशा मत बनाएं। और ये सारी बात पैदा होती है जब मन मानी के बेंच बनते हैं। मैं आपको आज बता देता हूँ, आप यहाँ किसी सड़क पर किसी आदमी से पूछें कि इस बेंच का फैसला क्या आएगा, वो आपको बता देगा कि फैसला क्या आएगा। ये बदनसीबी है। अदालत की साख इस हद तक मुतासिर हो चुकी है। अच्छा, अभी आपने गालबन नाम नहीं ले रहे, लेकिन शायद साकिब निसार साहब का जिक्र आपने किया कि उन्होंने आपको कहा कि अगर आपने कानून बनाया रात को बनाएंगे तो सुबह का, तो इस तरह ये लग रहा है कि फिर पूरा जो सिस्टम है उसको ब्लैकमेलिंग के जरिए चलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ब्लैकमेलिंग की बात नहीं है। मैंने आपको एक मिसाल दी है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नाम लेना दुरुस्त नहीं है। जो आदमी अपना दिफा ना कर सके उसका नाम नहीं लेना चाहिए। तो बहरहाल ये हमारे निज़ाम की खराबियाँ हैं कि आज जो अदालत का निज़ाम है वो हर बात को सुबह मोटो नोटिस लेता है। शादी घरों पर भी सुबह मोटो नोटिस लिया गया, लेकिन जो इन अदालतों में हो रहा है इसका कोई सुबह मोटो नोटिस क्यों नहीं लेता? आप यहाँ जाएं, ज़रा देखें कि कितने लोग कितने सालों से इन अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। क्या यहाँ इंसाफ नहीं होना चाहिए? क्या इंसाफ की ताख़ीर नाइंसाफ़ी नहीं होती? इन बातों का फैसला मैं तो नहीं कर सकता, अदालतें करती हैं। लेकिन अदालतें हर मामले पर सुबह मोटो नोटिस लेती हैं, सिवाय जो इस मुल्क के इंसाफ का निज़ाम है। अच्छा सर, आप क्या चाह रहे हैं कि अदालतें जो बेंच बनाती हैं उससे पहले जो जिनके खिलाफ मुकदमा होता है उनसे पूछा जाए कि जी कौन से जजेस बिठाए जाएं और जजेस कौन से बेंच बनाए जाएं? इस तरह का कोई कानून होना चाहिए? नहीं, आपका क्या ख्याल है? मैं नहीं कह रहा। आज सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि ये जो बेंच बनते हैं वही 3-5 आदमी का बेंच हर मामले पर बनता है, ख़ास तौर पर जो सुबह मोटो नोटिस होता है। इंसाफ का एक तकाजा होता है कि अगर मुल्ज़िम भी आप में उंगली उठा दे, मुल्ज़िम उंगली उठा दे, तो वो जज या वो बेंच हट जाता है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मेरे साथ ख्वाजा नवीद साहब सीनियर लॉयर हैं इस शहर के। आज से 23 साल पहले हमारा इसी शहर में हाईजैकिंग का ट्रायल हुआ था। बहुत मशहूर ट्रायल था पाकिस्तान की तारीख में। 99 में
2000 में फैसला आया। रहमत हुसैन जाफरी साहब उसके जज थे। उस वक़्त हाई कोर्ट के जज भी नहीं थे, स्पेशल कोर्ट के जज थे। हाईजैकिंग ट्रायल था जिसमें मुल्क के वज़ीर आज़म, चीफ मिनिस्टर 2 और 9 लोग उसके अंदर एक्यूज़ थे। सबसे मार्शल्ला हुकूमत थी उस वक़्त। रहमत हुसैन जाफरी साहब ने ट्रायल चलाया, डे टू डे बेसिस पर चला। ट्रायल जब मुकम्मल हो जाता है तो आप जज के पास पेश होते हैं और एक कागज़ पर साइन करते हैं कि मुझे इस ट्रायल से कोई एतराज़ नहीं है। बात दुरुस्त है जी? तो एक एक करके हम 9 एक्यूज़ थे तो कमरे में ले गए। रहमत हुसैन जाफरी साहब बैठे थे तो मैं जब कमरे में गया तो उन्होंने तमाम एहलकार निकाल दिए कमरे से। रहमत हुसैन जाफरी साहब जिंदा है, ये बात मैंने पब्लिकली एक TV प्रोग्राम पर की है, पहले उसे कभी नहीं की थी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बैठे थे, मुझसे पहले आए थे साइन करने, मैं भी आया। तो हम कमरे में 3 लोग रह गए। रहमत हुसैन जाफरी साहब ने कहा कि मियाँ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, कि अगर आपको मुझ पर एतमाद नहीं है, ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, मुझ पर एतमाद नहीं है, मेरे मुंह पे कह दें, मैं अभी केस को रिमांड कर देता हूँ, यानी री ट्रायल हो जाएगा। ये इंसाफ के तकाजे होते हैं, ये जज का कैरेक्टर होता है जिसकी आज ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। सर वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, आप इतनी वजाहतें कर रहे हैं कि आप नई पार्टी नहीं बना रहे, लेकिन उस हुई लोगों की वहीं अटकी कि आपका ये जो आपकी क्या राय, बना देनी चाहिए? हमें क्या एतराज़ है? दूसरा सवाल मशवरा दो ना। मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान, मैं पहले कहा कि कार्रवाइयाँ चल रही हैं। मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान चंद चीज़ों में खुद कफील है, उसमें एक सियासी जमातें भी हैं, बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकते चल हैं रही है जी। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है, एक तबके की ख्वाहिश भी है और लग भी रहा है कि शायद वो पूरा हो जाए। जिस तरह आपने कहा कि बेंच बनती है तो पता चलता फैसला क्या आएगा। पता ये चले कि कल मियां शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट तौहीन अदालत में गई अंदर, तो कहते हैं कि आप दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे पाकिस्तान। इंशाल्लाह आप लिखवा लें जी, ये सादे कागज में लिखा लें कि मैं वज़ारत उम्मीदवार नहीं हूँ। आप पहले भी नहीं थे, अगर पार्टी ने नहीं, मैं बिल्कुल उम्मीदवार नहीं हूँ, लिखवा लें यार। राजा साहब ने आपको अगर लिखा इंशाल्लाह। आज आपको वज़ीर आज़म ढूंढने पड़ेंगे या वज़ीर आज़म मिलेगा नहीं आपको। वैसे आप मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमिन है, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी तारीफ कर रहे हैं कि मियां साहब बड़ा अच्छा देखिए, काम कर रहे हैं। मुतमईन मैं हूँ या न हूँ, मुल्क के हालात मुश्किल हैं, इनको मैनेज करने की ज़रूरत है। ये हालात जो बिगाड़ अशरों का है, ये एक दिन में दूर नहीं होता सर वो मैनेज IMF कर तो रहा है। जी। अब तो IMF ने कह दिया कि IMF जो कर रहा है, अगर वो जो IMF चाहता है वो हम करें, फिर आपको समझ आ जाए।